Hello dear student, thank you all of you for watching my video and welcome all of you my new physics channel CKS Physics. And one thing आम फिजिक्स पढ़ा पूर्व गोटे वर्ड माइंड रखा पड़ो गोटे सेंटेंस माइंड रखा पड़ो जे फिजिक्स को आम रटाफिकेशन में पढ़ानी आम फिजिक्स को इमेजिनेशन सहित पढ़ा दैट मीन्स इफ यू स्टडी फिजिक्स विथ इमेजिनेशन with reality imagination with examples, then I hope my dear student all you are fall in love with physics. That my guarantee. And I hope start the physics with me. I am going to upload all the chapter one by one for 12th as well as 11th physics. Now I am going to start your new chapter, interesting chapter and most important chapter for 12th physics, that is semiconductor devices. So in this chapter we can study about these are the key points of semiconductor devices. What are the key points? First I am janiba what is semiconductor kon. Why semiconductor means what is the necessary of semiconductor, why semiconductor is important for us and our daily life, and then some examples of semiconductor, for example silicon and germanium and the structure padhiba, that is structure of semiconductor. Next point, charge carriers in semiconductor. Already hame janiche proton and electrons are charge carrier in conductor, but in case of semiconductor there is another new charge carrier, that is holes, and this is the most important concept, that is concept of holes. Clear? Tale fourth point ram padiba charge carrier विषय रे, that is holes and free electrons, concept of holes विषय पढ़िबा. Next point रे पढ़िबा electrical conduction in semiconductor रे current केमिति flow होउची, that is electrical conduction in semiconductor. So dear student, class start करबा पूर्व first आमे जानिबा chapter name is semiconductor devices. So semiconductor पूर्व आमे already जानिचे जे according to electrical conductivity, material is of three types, such as we can say first one is conductor, second one is semiconductor, and final third one is insulator. Clear? So according to electrical conductivity, material is of three types. हमें material को according to electrical conductivity रे तीन भाग रे विभक्त करले. कौन कौन ना कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड फाइनल इज इंसुलेटर. आम ऑलरेडी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर विषय किछि किछि कांसेप्ट हम पाखे अछि. कंडक्टर व्हाट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर व्हाट इज इंसुलेटर, ए सब हमें क्लास 6, 7 और 9, 10 क्लास रो पढ़ी के आछे. सो हमें 12th फिजिक्स रे बेसिकली सेमीकंडक्टर विषय पढ़िबा. इन दिस चैप्टर ओनली फोकस अबाउट सेमीकंडक्टर एंड समथिंग नॉलेज अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर. So first आम जानिबा जे कंडक्टर, semiconductor
and insulator. What are the basic difference in between conductor, semiconductor and insulator? So आपको भितर कौन सब बेसिक डिफरेंस रहुची बर्तमान में जानिबा. बेसिक डेफिनेशन पढ़िबा, देन कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी पढ़िबा. सो व्हाट इज कंडक्टर? सो फर्स्ट इज डेफिनेशन हम जानिबा. कंडक्टर डेफिनेशन कौन? हमें कहि परिबा दोज मटेरियल through which electric current can pass easily. Those material through which electric current can pass easily is known as conductor. जो थरे electric current easily pass करि परिबो हम ताको conductor कहि परिबा. Semiconductor जो थरे partially pass करिवो can pass partially. Can pass partially. And in case of insulator there is cannot pass easily. In case of insulator, current cannot pass easily. In case of conductor, can pass easily. And in case of semiconductor, can pass partially. And in case of insulator, current cannot pass easily. Means current cannot pass easily. That means current jai paribo, but very negligible amount jibo. That means we can say current cannot pass easily. Easily jai paribo ni, but jai paribo. For example, in case of air रे current जाई परिबो ना जाई परिबो? Yes, जाई परिबो. Why? केमति जीवो ना? In case of lightning, जेतो lightning होची air रे lightning टा pass करूची, that means current pass करूची. Why lightning passes through the air, but air is an insulator? Because the magnitude of lightning is very high. The magnitude of current in case of lightning is very high. If the magnitude of current is very high, then there is possibility of passes of current in case of insulator. Insulator रे current जाई परिबो जते बेले current रो magnitude high रहइबो. And हमें कहि परिबा जे insulator रे current जाउची but less amount रो जाउची, very less negligible amount. But semiconductor रे partially pass करिवो, insulator रो टिके अधिक pass करिवो, but conductor थारु less amount रो pass करिवो कोथरे ना semiconductor रे. And conductor रे easily pass करी पारिबो. But तमे जतले 7th किंबा 8th क्लास एतिलो insulator भावतलो there is no passes of electric current. There is no current passes through the insulator. Insulator रे कोनोसी current जाउ नै, but that is wrong. In case of insulator there is passes of current but very negligible amount. That means you can say current cannot pass easily, but cannot pass easily pass करी परिबा but less amount रो pass करिवो. How हमें वर्तमान केमती explain करिबा? देखो जेतले कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करिया को जीवा दीटा प्रॉपर्टी विषय फास्ट जानिबा. कौन से दीटा प्रॉपर्टी ना? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी एंड द सिंबल होची सिग्मा. एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज रेजिस्टिविटी एंड द सिंबल होची रो. What is conductivity and what is resistivity? So my dear student, conductivity and resistivity कौन ना? Conductivity and resistivity are the constant property of material. गोटे material रो constant property होची resistivity and also conductivity. ए conductivity and resistivity conductor पाखरे अछि, semiconductor पाखरे अछि, as well as insulator पाखरे अछि. का पाखरे conductivity high अछि and का पाखरे resistivity high अछि, and का पाखरे conductivity low अछि, का पाखरे resistivity high अछि. So ए टाइप रो हमें conductivity and resistivity को बुझिबा फर्स्ट, देन हमें डिफरेंशिएट करबा अकॉर्डिंग टू conductivity and resistivity. कंडक्टर काहा को कहबा, सेमीकंडक्टर काहा को कहबा, and insulator काहा को कहबा. So what do you mean by conductivity? We can say it is a constant property of every material which
allow the flow of current, allow the free electrons. Conductivity होची गोटे मटेरियल रो कांस्टेंट प्रॉपर्टी जी कि से मटेरियल रे करंट रो फ्लो को अलाउ करे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करिवारे अलाउ करे, दैट इज कंडक्टिविटी. एंड तार जस्ट रेसिप्रोकल बा ऑपोजिट वर्क के करे ना रेजिस्टिविटी, ये अपोज करे एंड कंडक्टिविटी अलाउ करे. एंड दिस आर द कांस्टेंट प्रॉपर्टी. हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रे डिटेल ले पढ़िबा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, conductance, resistance, these are not constant property, but resistivity and conductivity are constant property of material. These are not जो conductivity and resistivity केबे according to length, according to area change होबनी. Suppose हम wire गोटे wire length L अछि हम तो काटी देले भी तार resistivity और conductivity change होबो नाही, but resistance conductance change हो, because resistance and conductance are not constant property of material, but conductivity and resistivity are the constant property of material which only depends upon the nature of the material. Means if the wire is a copper, then the copper conductivity is fixed and resistivity also fixed. And in case of aluminium, there is different value of conductivity and resistivity. But in case of copper, बड़ wire टे नियो कि छोट wire टे नियो, सरू वायर नियो कि मोटा वायर नियो, एरिया को हाई करो कि एरिया को लो करो, लेंथ को हाई करो कि लेंथ को लो करो, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी केबे हेले चेंज हबनी जे पर्यंत हमें मटेरियल चेंज न करिचे, कॉपर जगह एल्युमिनियम न नेचे. बट रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस चेंज हो. ए जो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को हम डिटेल ले पढ़िबा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रे. बस एई चैप्टर एति की मन रखो जे कंडक्टिविटी होची कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and resistivity is a constant property of every material which oppose the flow of current or oppose free electrons. Free electrons रो movement को oppose करे. ताले जेहेतु resistivity oppose करूची ताले को ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर भितरु कोथरे करंट लेस अमाउंट रो पास करूची. इंसुलेटर ऑब्वियसली इंसुलेटर, सो इंसुलेटर लेस अमाउंट रो जदी पास करूची ताले रेजिस्टिविटी हाई थिबो, अपोज अधिक होतबो. So जेहेतु अपोज होची अधिक, we can say in case of insulator resistivity is high and conductivity is low. Conductivity बहुत low. But in case of conductor, there is more amount of current will be passed, more amount of free electron will pass through the conductor. So in case of conductor, conductivity is high and resistivity is conductivity is high, resistivity is low. ठीक है, resistivity low, opposing low होची and allowing both होची. So conductivity is high and resistivity is low. But semiconductor conductor नुहे कि insulator नुहे, neither conductor nor insulator, but the property of semiconductor lies in between conductor and insulator. Conductor और insulator भितरे semiconductor रो property lies करूची. that means जदि हमें in case of conductivity कहबा, conductivity होची high conductor रो, low insulator रो, ताले आर conductivity जेतु ये high अछि आठु जस्ट के low रहइबो, ये जेतु low अछि आठु जस्ट के high रहइबो. So conductivity of semiconductor lies in between conductor and semiconductor, and we can say the conductivity of semiconductor is greater than that of conductivity of semiconductor is greater than that of conductivity of insulator and less than that of conductivity of a conductor. Clear? Conductivity of semiconductor greater than that of insulator but less than that of conductor. Clear? Next point, and resistivity of semiconductor is less than that of conductor, high अछि आठु low रहिबो, less रहिबो, less than that of insulator, and resistivity of semiconductor is greater than that of resistivity of a conductor. कंडक्टर रेजिस्टिविटी ठारू सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी अधिक रहिबो. क्लियर? ताहले कंडक्टर रो प्रॉपर्टी हमें जानिले, सेमीकंडक्टर रो भी प्रॉपर्टी जानिले अकॉर्डिंग टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अकॉर्डिंग टू पासेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को हमें डिफरेंशिएट करले.
अच्छा बर्तमान आम पढ़ा से कंडक्टर और सेमीकंडक्टर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एतक पॉइंट आउट करदेव। नेक्स्ट आम और आउ किसी प्रॉपर्टी पढ़ा कौन प्रॉपर्टी अच्छी देखो। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड more amount of current passes through the conductor and partially amount of current passes through the semiconductor and very negligible amount of current passes through the insulator। insulator रे कौन पाई बहुत कम करंट जाउची and conductor रे केमती high amount of current जाउची and semiconductor रे केमती partially जाउची। what is the basic reason कौन ना because हमें कहि परिबा according to conductivity or conductivity high अछि अधिक इलेक्ट्रॉन का अलाउ करूची। that means there is a more amount of free electrons, here the less amount of free electron, here the amount of free electron less than that of conductor and greater than that of insulator। जोठी जहाँ पाके फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक थिबो से करंट को इजीली कंडक्ट करि परिबो, जहाँ पाके फ्री इलेक्ट्रॉन कम थी से करंट को इजीली कंडक्ट करि परिबोनी। सो इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट करंट इजीली बट कंडक्टर कंडक्ट करंट इजीली बट सेमीकंडक्टर कंडक्ट करंट पार्शियली। क्लियर। एंड जदि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन केस को जिबा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 1 2 और 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहउची। कंडक्टर रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 1 2 और 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहउची बट वैकेंसी केते रहउची देखो। यदि 1 रहिला ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को सैटिस्फाई करिया पे याको 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार स्टेबल होबा पे, याको केते दरकार 6 नंबर और याको केते दरकार 5 नंबर। तले लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड। That means there is large amount of vacant place. Large amount of vacant place, so maximum amount of electrons can flow through the conductor। जेहेतु अधिक इलेक्ट्रॉन से अलाउ करि पारुची तब हम कंडक्टर कहूची। क्लियर। इट फ्री रहउची, वैकेंट रहउची। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन केता रहइबो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 4, ओनली 4। जहार वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थिबा हम ताको सेमीकंडक्टर कहि परिबा। एंड इन केस ऑफ इंसुलेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते रहउची ना 5 6 और 7 रहउची। इन केस ऑफ इंसुलेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहउची 5 6 और 7 एंड फ्री केते रहउची एठी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को सैटिस्फाई करिया पय तीनटा इलेक्ट्रॉन आवश्यकता अछि। एठी दुटा इलेक्ट्रॉन और एठी गोटे इलेक्ट्रॉन माने लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को से अलाउ करूची ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल होबा पय लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करूची। So it allows much more amount of electron, it allows less amount of electron। So electron एथरे free electron बहुत कम अच्छी and in case of conductor free electron is more than that of insulator and in case of semiconductor free electrons are lies in between conductor and a semiconductor, conductor and a insulator। अच्छा ताले हम एठी कहि परिबा ताले एठी मैक्सिमम अमाउंट रो करंट फ्लो करिवो, एठी लेस अमाउंट रो बहुत लेस नेग्लिजिबल अमाउंट रो बट एठी पार्शियली करंट फ्लो करिवो बुझौची। बट जदि हमें कहिबा फॉर आइडियल इंसुलेटर, आइडियल इंसुलेटर तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते रहइबो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहइबो 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते रहइबो 8 माने से ऑलरेडी स्टेबल अछि, से कोनोसी इलेक्ट्रॉन को गेन करिवोनी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करिवोनी। जदि इलेक्ट्रॉन को गेन करूनी ताले इलेक्ट्रॉन जदि पास करूनी करंट फ्लो हबो कि इलेक्ट्रॉन तो पास करूनी हमें जानिचे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। ताले जदि इलेक्ट्रॉन गोटे मटेरियल देकी पास ही पारुनी कोनोसी ता भितरे इलेक्ट्रॉन माने फ्री नांती ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल। सो वी कैन से इन केस ऑफ आइडियल इंसुलेटर देयर इज सेठी कोन हबो करंट जमा पास ही करिवोनी, एटी पार्शियली लेस अमाउंट रो पास करतला। देयर इज नो करंट पास थ्रू द आइडियल इंसुलेटर, there is no current passes through an ideal insulator। ideal insulator देखि कोनोसी करंट passes कर परिबो नै। ता माने हम कहि परिबा जे इंसुलेटर रे पास करिवोनी, इंसुलेटर लेस अमाउंट रो पास करिवो बट इन केस ऑफ आइडियल इंसुलेटर जम्मा भी करंट पास करिवोनी। there is no current passes through the ideal insulator because the outermost orbital valence electron is 8 and become it is stable, it cannot lose against any amount of electrons। क्लियर। फॉर एग्जांपल कहि परिबा आइडियल इंसुलेटर ऑल नोबेल गैसेस सबुतक नोबेल गैसेस होचंती। इनर्ट गैस जो माने अछंती हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन नेरन ऑल आर आइडियल इंसुलेटर। ताको भितरे कोनोसी करंट जीरो अमाउंट रो करंट भी पास करिवो नाही बिकॉज़ से माने स्टेबल एंड ताकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहउची।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कंडक्टर रे कौन पाई मैक्सिमम करंट जाउची इन्सुलेटर रे लेस जाउची सेमीकंडक्टर रे पार्शियल जाउची बट आइडियल इन्सुलेटर रे कोनोसी करंट पास करू नहीं बिकॉज तारा स्टेबल अच्छी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 अच्छी क्लियर। अच्छा ताले कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इन्सुलेटर को हमें डिफरेंशिएट कर देले अकॉर्डिंग टू वैलेंसी according to conductivity, according to resistivity and according to flows of free electrons हमें कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर को डिफरेंशिएट कर ले क्लियर। अच्छा वर्तमान एग्जांपल दे देबा कंडक्टर रे एग्जांपल जो जीव कॉपर सिल्वर गोल्ड इट इज एंड सेमीकंडक्टर एग्जांपल दबा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन रो आटम मोस्ट ऑर्बिट रे 4 रहउची श्योर चेक करो जेतो आर एटॉमिक नंबर 6 z = 6 फर्स्ट ऑर्बिट रे 2 देन सेकंड ऑर्बिट रे लास्ट ऑर्बिट रे 4 नंबर सहिला सिलिकॉन रो एटॉमिक नंबर होची 14 फर्स्ट रहइबो 2 देन रहइबो 8 8 टू ला 10 आ बाकी रहइला 4 तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे केते रहइला 4 सो वी कैन से दिस इज सेमीकंडक्टर सिमिलरली जर्मेनियम रो एटॉमिक नंबर z होची जर्मेनियम रो केते ना 32 so 32 first 8 then second 8 first 2 8 then 18 and finally 4 2 8 10 18 to 20 28 4 32 32 ले आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 4 इलेक्ट्रॉन रहला तले हमें जो मटेरियल मानना करो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिबे हमें ताको सेमीकंडक्टर कहि परिबा फॉर एग्जांपल कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ओके। सो फर्स्ट कांसेप्ट हमर क्लियर हैला दैट इज व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड हमें जानिले एते तम कंडक्टर एंड इन्सुलेटर कोन से आवश्यकता नै चैप्टर रे हमें चैप्टर रे ओनली फोकस करिवा सेमीकंडक्टर ऊपर। सो सेमीकंडक्टर कांसेप्ट कोन क्लियर हैला रिवाइज करूची देखो सेमीकंडक्टर कांसेप्ट एति की क्लियर हैला जे सेमीकंडक्टर होची गोटे मटेरियल जादरे कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर थारु कम पास करिवो इन्सुलेटर थारु अधिक पास करिवो एंड द कंडक्टिविटी of semiconductor is less than that of conductor and greater than that of insulator and the resistivity of semiconductor is greater than that of conductor and less than that of insulator clear resistivity होला then तार valency भी जानिले बर्तन सेकंड पॉइंट आछि why semiconductor means why semiconductor is most important for us my question is if already हम पाके available थिला conductor insulator ताले सेमीकंडक्टर रो कोन आवश्यकता पड़िला एंड सेमीकंडक्टर कोन हमर एमती इंपोर्टेंट वर्क अछि व्हाई सेमीकंडक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस सुनो डियर स्टूडेंट हमें जानिबा जे कंडक्टर भी हम पय यूजफुल इंसुलेटर भी यूजफुल एज वेल एज सेमीकंडक्टर भी हम पय यूजफुल कंडक्टर रो तार जो प्रॉपर्टी रहउची ता अनुसार से यूजफुल कंडक्टर रे इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होची हम ताको डिफरेंट वायर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस माने करे कंडक्टर काम को लगे पाउचे बट इन्सुलेटर रो करंट अमाउंट लेस अमाउंट रो फ्लो होची सो हमें ताको इन्सुलेशन भाबी यूज करि परचे जेमति कि हमरो वायर रो आउटर टा इन्सुलेशन रहउची जदि सेटा नथांदा कोन होता हमें करंट धरि सब खाइथांदे सो तार भी किछि एप्लीकेशन रहउची समस्त को यूजफुल अछि बट दिस चैप्टर हमें जानिबा जे सेमीकंडक्टर रो कोन आवश्यकता पड़िला मींस why semiconductor is most important for us why semiconductor is important for us हम भाई कौन इंपोर्टेंट सुनो जेहेतु कंडक्टर रे लार्ज अमाउंट रो करंट पास करूची एंड इन केस ऑफ इंसुलेटर बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट रो करंट पास करूची and semiconductor partially amount of current pass करूची so by using semiconductor we can control the flow of free electrons or we can control the flow of electric current by using semiconductor we can control the flow of free electrons or electric current हमें semiconductor को यूज करके करंट रो फ्लो को कंट्रोल करि परिबा केमिति फॉर एग्जांपल देखो सपोज इन केस ऑफ रथ यात्रा जदि हम रथ यात्रा केस को देखिबा यदि रथ यात्रा बहुत सारा लोक आसीबे मिलियंस लोक आसीबे तले पुलिस मान कोन हो ना कंट्रोल करिया को बहुत डिफिकल्टी फेस करिया पड़िबो
लोक बहुत है पीपुल्स बहुत है सो पीपुल बहुत है से कंट्रोल करने इजी हेनी बहुत डिफिकल्ट फिल करेंगे डिफिकल्टी फेस करेंगे बट जदि पीपुल बहुत कम है कंट्रोल ही करा पड़ोनी बट इन केस ऑफ इन्सुलेटर कंट्रोल करने कुछ आवश्यक ना कंडक्टर आमको कंट्रोल करने डिफिकल्ट हम बिकज देयर इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी हाई बट इन केस ऑफ इन्सुलेटर से करंट जाऊँगी नेग्लिजिबल नुह बट करंट जाऊँगी बट इन suitable amount partially current जाऊँगी so we can using semiconductor we can control the flow of free electrons रो flow को control करि परिबा जदि हमें इलेक्ट्रॉन रो फ्लो को कंट्रोल करि पारिले ताहले कोन होबो ना ताकू नै कि हमें डिफरेंट टाइप रो इलेक्ट्रॉन की डिवाइस तैयारी करि परिबा फॉर एग्जांपल हमें जदि कहिबा इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ताको भीतर डिफरेंस कोन फॉर एग्जांपल फैन हो जोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बट एसी फ्रिज वाशिंग मशीन मोबाइल फोन रिमोट टेलीविजन टीवी ए सब कौन ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस विथ डिफरेंस कौन ना इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंडक्टर यूज होची एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो हम सेमीकंडक्टर यूज होची बिकॉज जो हमें कहूचे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केबे तुम रिमोट को ब्रेक करिचो भांगीचो रिमोट को भांगिला पर जो मदरबोर्ड बाहर मदरबोर्ड रे डिफरेंट टाइप रो ब्लैक कलर रो डिफरेंट कलर इंडिकेटेड सर्किट रेजिस्टर इंडक्टर सॉरी रेजिस्टर डायोड ट्रायोड ये सब रेक्टिफायर ये सब ताते लागि छि सो से सब कोन जो छोट छोट डिवाइस सब लागि छि ताको हम कोन कहूचे दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से सब सेमीकंडक्टर तयारी छि कोन पई ना ता जो डिफरेंट पार्ट्स होची डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट अमाउंट रो करंट रो आवश्यकता अछि सो डिफरेंट अमाउंट रो करंट को हमें तो कंडक्टर यूज करके कंट्रोल करि परिबानी आमे कौन करबा ना सेमीकंडक्टर यूज करबा जदि सेमीकंडक्टर यूज कले ताल करंट रो फ्लो को कंट्रोल करे जो डिवाइस को सुइटेबल अमाउंट रो करंट जोगेबा पई सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस दैट मींस बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट बाय ड्यू टू दिस रीजन we can construct different types of electronic devices डिफरेंट टाइप रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तैयारी करी पाइबा जेमति कि तुम आज फोन धरछो स्मार्टफोन धरछो एंड स्मार्टफोन कहार अवदान कहा जो क्रिएट है सेमीकंडक्टर जो क्रिएट है सो वेरी लॉन्ग ईयर एगो बहुत वर्ष पूर्वे सेमीकंडक्टर रो यूजेस नथिला तार एप्लीकेशन के सिखि नथिले सेति पय ताको यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किछि बाहर नथिला सो वर्तमान जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब बाहर अछि इन केस ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन हो हाई टेक्नोलॉजी हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सेठी हम जो डिफरेंट टाइप रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तयारी करूचे से सब रे हमर सेमीकंडक्टर आवश्यकता अछि बिकॉज़ सेमीकंडक्टर को यूज करके हमें करंट रो फ्लो को कंट्रोल करि परिबा एंड करंट रो फ्लो को कंट्रोल कले हमें न्यू डिवाइस सब तयारी करि परिबा So why semiconductor is most important for us? Because we can control the flow of free electrons by using semiconductor. So semiconductor is most important for us. Clear? Why semiconductor reason bujilo? Then as your structure of silicon and germanium. Clear? अच्छा बर्तमान पढ़िबा सिलिकॉन एंड जर्मानियम रो स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर एग्जांपल भी हमें पढ़िले सिलिकॉन जर्मानियम एमाने और कार्बन एमान सब होसंती वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रो एग्जांपल एंड सो सिलिकॉन को हमें केमती सेमीकंडक्टर भाबे तार स्ट्रक्चर केमती पढ़िबा देखो फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन पढ़िबा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन देखो ताले सिलिकॉन स्ट्रक्चर पढ़िबा गुरु फास्ट देखो तार एटॉमिक नंबर सिलिकॉन रो एटॉमिक नंबर केते ना सिलिकॉन रो एटॉमिक नंबर होची Z = 14 बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पाइबा फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड ऑर्बिट 8 थर्ड ऑर्बिट 4 सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रोची सेमीकंडक्टर जहार वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो हम ताको कोन कहि पाइबा ना सिलिकॉन इज अ टेट्रावैलेंट एटम टेट्रावैलेंट एटम
silicon is a tetravalent atom, means the valence electron of silicon is 4. So if we take a single atom of silicon, there is 4 valence electron, tetravalent atom. And when we study in case of silicon crystal, what is silicon crystal? A piece of silicon. What is silicon piece? खंड. सिलिकॉन क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन रहुछि, बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स रहुछि. सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 4टा इलेक्ट्रॉन्स होचा रहिला. देन आउ गोटे सिलिकॉन रखिली, यार भी 4टा इलेक्ट्रॉन रहिबे आउटर मोस्ट ऑर्बिट. हियर आउ गोटे 4टा सिलिकॉन रखिली, यार भी 4टा इलेक्ट्रॉन रहिबे. एठी गोटे सिलिकॉन रखिली, यार भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे केतना इलेक्ट्रॉन रहिबे? 4टा. एठी गोटे सिलिकॉन रखिली, यार भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहिबे. देखो, because silicon is a tetravalent atom, due to this reason silicon create a covalent bond with their nearby 4 atoms. जेहेतु आर valence electron 4 and ताको tetravalent atom कहूचे, सेति पाई से सिलिकॉन कौन करिवो ना ता नियर बाय ता पाखा पाखी 4टा एटम सहित से कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करिकी रिलेशन क्रिएट करिवो. देखो वर्तमान आक भीतर गोटे रिलेशन रहिला, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कले, ये गोटे इलेक्ट्रॉन देला, ये गोटे इलेक्ट्रॉन देला, मिसी के आक भीतर गोटे रिलेशन क्रिएट होला एंड गोटे बॉन्ड रो फॉर्मेशन होला. से बॉन्ड को हमें कोन कहले ना, से बॉन्ड को कहले कोवैलेंट बॉन्ड. क्लियर? कोवैलेंट कहले कोवैलेंट बॉन्ड. केमिस्ट्री रे ऑलरेडी तुम कोवैलेंट बॉन्ड कोन जानिछो. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर पेयर माने ये गोटे इलेक्ट्रॉन ताको शेयर करिवो, ए एटम आको गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करिवो, से माने पेयर फॉर्मेशन करिवे एंड बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे. जो बॉन्ड फॉर्मेशन कले से बॉन्ड रो ना होची कोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन रो शेयर रे, इलेक्ट्रॉन रो आदान प्रदान रे जो बॉन्ड टा फॉर्मेशन होला ताको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहले. ताले ईच एटम सिलिकॉन एटम्स क्रिएट ए कोवैलेंट बॉन्ड विथ देयर 4 नियरबाय एटम्स. नियरबाय एटम्स सहित कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे. सिमिलर जदि मु एठी गोटे सिलिकॉन रखिबी, से तार चारिपटी 1 2 3 4 सिलिकॉन सहित को बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो ना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो. क्लियर? एठी भी गोटे सिलिकॉन रखिबी, ये भी तार नियरबाय को एटम सहित कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो. हियर कोवैलेंट बॉन्ड and here also silicon atoms then also create an covalent bond, create a covalent bond. This is the complete structure of silicon crystal. ये गोटे सिलिकॉन क्रिस्टल रो स्ट्रक्चर. सिमिलर जब आमे आहुरी सिलिकॉन नबा ताले सीता परस्पर सहित कोन करिवे, गोटे सिलिकॉन ता चारिपटे नियर बाय एटम सहित 4टा एटम सहित से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो. अच्छा, से कोन पई कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कले? बिकॉज़ हमें जानिचे जे सब एटम स्टेबल होबाक चाहती. जेहेतु आर 4टा इलेक्ट्रॉन अछि आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे, से चाहिबो कि मते 4टा इलेक्ट्रॉन दो मु स्टेबल हो जे, न कि मोटू 4टा इलेक्ट्रॉन नहीं जाऊ, गेन करू आइदर लूज करू, गेन करू आइदर लूज करू. बट जेतेबे सिलिकॉन क्रिस्टल रही जाउची, यार 4टा इलेक्ट्रॉन आर 4टा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सहित कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कले ए दीटा को इलेक्ट्रॉन आर ही परिबो एज वेल एज ए एटम रे भी परिबो. त माने हमें काउंट करिबा. देखो सपोज दिस सिलिकॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 केता इलेक्ट्रॉन रहला? 8टा इलेक्ट्रॉन. ताले कोन कहि परिबा? स्टेबल. ये एटम टा स्टेबल हो गला. सिमिलरली ये भी स्टेबल हो पारे, ये भी स्टेबल हो पारे, ऑक्टेट कन्फिगरेशन को सैटिस्फाई करि परिबे एंड स्टेबल हो पारे. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल. क्लियर? ताले सिलिकॉन क्रिस्टल रे जो स्ट्रक्चर रहिला, दिस स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डायमंड क्रिस्टल. डायमंड रो क्रिस्टल जेमति देखिबा को तार स्ट्रक्चर जेमति, सेम सिलिकॉन रो क्रिस्टल रो स्ट्रक्चर भी सेमति. सो वी कैन से silicon as diamond crystal. That means the geometrical structure of silicon exactly same to the diamond.
डायमंड भली देखा से आम सिलिकॉन आज डायमंड क्रिस्टाल भी कही परिबा Si आज डायमंड क्रिस्टाल। सिमिलर जदि आम जर्मानियम करबा सेमति जर्मानियम स्ट्रक्चर भी सेम रहइबो खाली सिलिकॉन जगह कम बस पड़िबो जर्मानियम तार भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट केते इलेक्ट्रॉन रहउची 4टा इलेक्ट्रॉन रहउची से तार जो नियर बाय 4टा एटम सहित कोन करिवो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो इलेक्ट्रॉन रो शेयर पेयर रे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड एज वेल एज जर्मानियम भी हमें कहि परिबा। तो हमें वर्तमान क्लियर होले थर्ड पॉइंट्स one is silicon structure and second one is germanium structure। वर्तमान हमें कौन कौन सब क्लियर होले ना तीनटा पॉइंट रे क्लियर होले व्हाट इज सेमीकंडक्टर नेक्स्ट पढ़ले व्हाई सेमीकंडक्टर देन पढ़ले सेमीकंडक्टर किछि एग्जांपल सहित सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन रहिला एंड जर्मानियम रहिला तार हमें स्ट्रक्चर भी जानिले एंड से माने परस्पर सहित कोन करंती कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करंती। नेक्स्ट आसीबो चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। सुनो सेमीकंडक्टर रे जो करंट फ्लो होउची करंट फ्लो करिवा पछरी दीटा पार्टिकल चार्ज कैरियर रो रिस्पांसिबिलिटी रहउची वन इज होल एंड अनदर इज फ्री इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कहि परिबा बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स are responsible for electrical conduction in semiconductor। clear semiconductor रे करंट रो फ्लो होवा पाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्रिएट करिबा पाई होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन रो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहउची। सो हमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जानिचे जे करंट क्रिएट करिबार हेल्प करे जे मूव करले करंट क्रिएट हुए जे दौड़िले करंट क्रिएट हुए सी होची फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा हमें जानिचे इलेक्ट्रॉन तो मूव करेनी मूव करे को इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अरे जे फ्री थिबो से मूव करियो ना जे फ्री नथिबो स्टेबल थिबो जे कोनोसी वर्क करथबो से तो मूव करिवनी केवल फ्री इलेक्ट्रॉन माने ही मूव करि परिबे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मूव करिवेनी बिकॉज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर कम पडुची न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पडुची। आमे प्रीवियस नेक्स्ट क्लास रे कोन करबा ना फ्री इलेक्ट्रॉन जते हम पढिबा बैंड एनर्जी थ्योरी आपर अछि बैंड एनर्जी थ्योरी पढला बेले मु डिटेल ले तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोन डिटेल ले बुझे देबी केमिति तमर सिटी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढि परुनी एंड से मान को कोन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहउचे एंड जे से माने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहले ताको ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पडुनी माने जने ताको जो सेंटर रे सपोज जे रहला एटम सिलिकॉन एटम तार फर्स्ट ऑर्बिट रहले दीटा 1 2 सेकंड ऑर्बिट रहले 8टा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 एंड थर्ड ऑर्बिट रे केतरा रहले ना रहले 4टा इलेक्ट्रॉन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। सो आर ऑर्बिट रे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन पाइले जे फर्स्ट दीटा सेकंड 8टा थर्ड रे हमरो रोची 4टा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कहूचे। सो ए ईच इलेक्ट्रॉन को ऊपर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऊपर सेंटर रे गोटे पडुची फोर्स दिस इज द सेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये न्यूक्लियस कौन करूची जेमती सन प्लैनेट ऊपर अट्रैक्शन फोर्स पकाउची सिमिलरली न्यूक्लियस कौन करूची तार इलेक्ट्रॉन मानक ऊपर अट्रैक्शन करूछंती पकाउची तले एमान को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहि परिबा कि ना एमाने फ्री नांती एमान को ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पडुची एमाने करंट क्रिएट करे हेल्प करि परिबे ना एमाने करंट क्रिएट करिवारे हेल्प करि परिबे नाही ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन करंट क्रिएट करिवारे हेल्प करिवो जहा ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ी पर नथिबो ताको हमें फ्री इलेक्ट्रॉन कहिबा जे फ्री इलेक्ट्रॉन मु नेक्स्ट आ परे मु कहबी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कहंती बट दीज आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दीज आर स्टेबल इलेक्ट्रॉन these electrons are not free they are performing only the work of revolution से केवल रिवोल्यूशन करंती इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ने हेल्प करि परंती नाही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ने फ्री इलेक्ट्रॉन हेल्प करे as well as होल्स भी हेल्प करे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सो फ्री इलेक्ट्रॉन विषय किछि किछि कांसेप्ट हमर अछि बट एठी जो वर्ड अछि होल्स ए होल्स विषय तमरा कांसेप्ट नाही किंतु हम जो चार्ज कैरियर पढ़ले सेमीकंडक्टर रे दीटा चार्ज अछंती जो माने कि करंट को इलेक्ट्रिकल को कंडक्शन करांती
सेमीकंडक्टर भितर सी होउछंती होल्स एंड अनदर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ताले वर्तमान हम पढ़िबा मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऑफ होल्स। बुझिला सुनो ताले देखो कांसेप्ट ऑफ होल्स। कांसेप्ट ऑफ होल्स। अच्छा एक कांसेप्ट ऑफ होल्स हम कौन पढ़िबा ना व्हाट इज होल्स। होल्स कौन देखो होल्स जाने पूर्व फास्ट देखो जदि हम गोटे सिलिकॉन क्रिस्टल को स्टडी करिबा देखो सपोज मु गोटे सिलिकॉन क्रिस्टल लेली दिस इज सिलिकॉन क्रिस्टल ताले माने कौन करिवे माने परस्पर सहित कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे। Each atom of semiconductor or silicon create a covalent bond with their nearby atoms, nearby 4 atoms, 4टा atoms सहित से माने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे। अच्छा वर्तमान से माने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देले। Now my question is if you are not doing anything with the silicon crystal वर्तमान सिलिकॉन क्रिस्टल सहित तुम यदि किछि भी करूनो दैट मींस तुम ताको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनो आउटर सोर्स रु किबा एक्स्ट्रा टेंपरेचर प्रोवाइड करनो इज देयर एनी करंट पासेस थ्रू द सेमीकंडक्टर सिलिकॉन क्रिस्टल आ भीतर करंट पास करि परिबो obviously no इथि करंट पास करि परिबोनी because all the electrons in silicon crystals take a participation in covalent bonds माने covalent bond formation करिवारे भाग नै छथि and all the electrons are stable से माने stable अछन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमिलरली आर भी 8 रे परिबो आर भी 8 परिबो आर भी 8 भी परिबो तले each individual silicon रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमें कहि परिबा 8 इलेक्ट्रॉन रहि परिबो because से माने covalent bond formation करछथि and these electrons are stable so there is no current passes through the silicon और सेमीकंडक्टर ताले एठी हम माइंड को आसुची जे मु भूल कहूची हमें पढ़िथिले सेमीकंडक्टर रे करंट पास करूची पार्शियली पास करूची एठी सार कहलेनी कोन सेमीकंडक्टर रे करंट फ्लो होनी देयर इज नो करंट पासेस टू द सेमीकंडक्टर एठी कोन सेमीकंडक्टर गोटे इन्सुलेटर हे गला कि यस ए केस रे सेमीकंडक्टर गोटे इन्सुलेटर पर बिहेव करबो केमती देखो फर्स्ट पॉइंट मु लिखुची बलसे देखो ताले सेमीकंडक्टर रो होल्स कांसेप्ट जानिया पे हमु किछि पॉइंट विषय जानिया पड़िबो जे एक्चुअली होल्स कोन से होल केमिति तयारी होउची एक्चुअली होल्स रो मीनिंग कोन देखो जदि मु कहबी एब्सोल्यूट एट एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर एट एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर मींस एट जीरो केल्विन टेंपरेचर एट जीरो केल्विन टेंपरेचर सिलिकॉन क्रिस्टल और सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कोई परिबा सिलिकॉन क्रिस्टल बिहेव्स as an insulator सुना बिले जे जदि हमें टेम्परेचर को जीरो कर दबा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नबा जीरो केल्विन टेम्परेचर नबा सिलिकॉन क्रिस्टल हो कि कोनोसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हो से गोटे इन्सुलेटर पर बिहेव करिवो because all the electrons are stable there is no current passes through the semiconductor so it behaves like as an insulator means our conductivity low हे जिवो and resistivity high हे जिवो जेतु माने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करसली ताको भितरे स्ट्रेंथनेस बढ़ी जिवो एंड टाइटनेस बढ़ी जिवो टाइटनेस बढ़ी गला पर जेतु कोवैलेंट बॉन्ड करसली क्लोजली पैक हे करसली टाइटनेस बढ़ी गले कोन होबो ना ताकर जो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी अछि रेजिस्टिविटी टा हाई हे जिवो एंड कंडक्टिविटी लो हे जिवो जेता रेजिस्टिविटी हाई हे गला कंडक्टिविटी लो हे गला सो देयर इज नो करंट पासेस थ्रू द सेमीकंडक्टर एंड बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर पर बिहेव करिवो ताले ठीक फास्ट जानले जदी टेंपरेचर लो अछि टेंपरेचर जीरो अछि ताले सेमीकंडक्टर टा इंसुलेटर पर बिहेव करछ इफ वी प्रोवाइडिंग सम टेंपरेचर और रूम टेंपरेचर और नॉर्मल टेंपरेचर एट रूम टेंपरेचर means
नॉर्मल टेम्परेचर व्हाट विल हैपन जदि हमें नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करबा ए रूम टेम्परेचर 37 डिग्री हे पारे 30 डिग्री हे पारे 20 डिग्री सेल्सियस हे पारे सो नॉर्मल टेम्परेचर कौन हम इफ यू प्रोवाइडिंग नॉर्मल टेम्परेचर टू द सिलिकॉन क्रिस्टल आम जाने जेकोसी गोटे मैटर को कि मटेरियल को आम हिट देले कौन हुए ना भितर बॉन्ड ब्रेकेज हुए कौन पे ब्रेकेज हुए ड्यू टू हीट थर्मल एनर्जी पाइला एंड ड्यू टू थर्मल एनर्जी बाय absorbing thermal energy each particle all the particle of silicon crystal all the particle of semiconductor starts performing thermal oscillation से माने थर्मल एनर्जी पाई कि वाइब्रेशन होबा को स्टार्ट करिवे at room temperature we can say at room temperature each particle of every particle of silicon crystal starts performing thermal oscillation then what will happen jeta thermal oscillation vibration hobo now the covalent bond gets break now the covalent bond gets break वर्तमान ए covalent bond break पड़िबो जटा covalent bond भांगी जिवो then these electron will be free वर्तमान से इलेक्ट्रॉन फ्री हे जिवो पता नहीं टोटल इलेक्ट्रॉन फ्री हे गला ये गोटे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गला जिते इलेक्ट्रॉन फ्री हो गले कौन होला एठी खाली जगह टी रही गला क्लियर जो इलेक्ट्रॉन माने फ्री हे छंती ये गोटे खाली जगह क्रिएट हो गला वैकेंट प्लेस अच्छा वर्तमान जो इलेक्ट्रॉन माने फ्री हेले से माने कोन करिवे आमे जानिचे फ्री इलेक्ट्रॉन नो काम होउची करंट तयारी करिवे अरे जो माने डिस्टर्बिंग करिवे जो माने पढ़ा पिला पढ़ी जो माने डिस्टर्बिंग एलिमेंट अछन ताको काम होउची क्लास टाइम रे गळी करी सो जेमिति डिस्टर्बिंग एलिमेंट मानकर काम होउची डिस्टर्ब करिबा सेमति फ्री इलेक्ट्रॉन मानकर काम कोन से मानकर गोटे काम होउची से माने बाहरिले माने कहबे मु करंट तयारी करिवि कोन क्रिएट करिवे करंट तयारी करिवे जो माने फ्री इलेक्ट्रॉन माने फ्री हेले देबे से माने कोन करिवे टेक ए पार्टिसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन and helps in electrical conduction so we can say at room temperature the covalent bond of silicon crystal gets break and the electrons will be now the electrons will be free and these free electrons helps in electrical conduction से माने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रे हेल्प करिवे क्लियर जेतेबेले से माने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रे हेल्प कले माने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रे हेल्प कले एंड देयर इज आल्सो क्रिएशन ऑफ ए वैकेंट प्लेस जेतु इलेक्ट्रॉन एठु पळैची ए जगह रे खाली जगह रहि गला देयर इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए प्रोसेस रे कोन हबो देयर इज आल्सो क्रिएशन ऑफ ए vacant place खाली जगह this vacant place is treated as holes बुझी होउची जेते बेले थर्मल ऑसिलेशन है कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होउची एंड इलेक्ट्रॉन माने फ्री होउछंती जो इलेक्ट्रॉन माने फ्री हे गले से माने इलेक्ट्रिक तयारी करबा को पळेले इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रे हेल्प कले एंड जो इलेक्ट्रॉन माने बाहरी गले से जगह रे जो वैकेंट प्लेस क्रिएट हला दिस वैकेंट प्लेस ट्रीटेड एज होल्स हमें ताको होल्स बोली कहि परिबा एंड द होल्स एको हम होल्स कहले एंड द होल्स जे इलेक्ट्रॉन बाहरी जाईची तार टेंडेंसी कौन टेंडेंसी रहिबो से कोड गोटे इलेक्ट्रॉन टाणी आनिबो ट्रैप कर लबो ताल द टेंडेंसी ऑफ होल्स इज द टेंडेंसी ऑफ होल्स टू ट्रैप another electron from nearby atoms रू से माने इलेक्ट्रॉन मान को ट्रैप करिवे जेहेतु आको पाके इलेक्ट्रॉन मान को ट्रैप करिबा अब्जॉर्ब करिबा टाणीबा पई गोटे टेंडेंसी रहउची प्रॉपर्टी रहउची ताहाले याकू कोन कहि परिबा इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रो काम होची इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो जेहेतु एटी होल कोन कला ता टेंडेंसी रहला इलेक्ट्रॉन को नै की ट्रैप करिवो इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करिवो अट्रैक्ट करिवो सो वी कैन से दैट holes behaves like a positive particle so we can say
holes behaves like a positive charged particle, but it is not a real particle. Understand? बुझी पारिलो? सुन भल से आमे कहि परिबा जे होल्स हो गोटे खाली जगह जहार की चार्ज होची पॉजिटिव बट रियल ले सेमती किछि पार्टिकल नाही, से जस्ट ए वैकेंट प्लेस. होल्स जस्ट लाइक ए वैकेंट प्लेस, गोटे खाली जगह जी कि इलेक्ट्रॉन मानक को अट्रैक्ट करबा पाई क्षमता रखिछि. टेंडेंसी ता पाखरे अछि जे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करि परिबो, सेति हम ताको पॉजिटिव पार्टिकल बोली कहूचे. पॉजिटिव पार्टिकल पर बिहेव कर बट सेटा गोटे प्रोटॉन परी रियल पार्टिकल नुह, रियल सब एटॉमिक पार्टिकल नुह. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर से रियल पार्टिकल हे परिबो नाही. सो कांसेप्ट ऑफ क्लियर होल्स क्लियर होला. तल कांसेप्ट ऑफ होल्स रे हमें कोन पढिले ना, कांसेप्ट ऑफ होल्स रे पढिले जे एते सारा बुझेली कोन पाई ना होल्स कोन जानि हमें. बट तुम जदि पढ़ जाओ व्हाट इज होल्स तुम कोन लिखिबो ना, लिखिबो होल्स इज ए वैकेंट प्लेस व्हिच behaves like a positive charge particle but it is not a real particle. But creation of holes केमती क्रिएट होला ना, जते बेले रूम टेम्परेचर रे हम प्रोवाइड करले गोटे सेमीकंडक्टर को तांको भीतर पार्टिकल मानकर थर्मल ऑसिलेशन होला, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होला, सेथु इलेक्ट्रॉन माने फ्री हेले. जो इलेक्ट्रॉन माने फ्री हेले से माने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रे भाग नेले एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करिवारे हेल्प करले. आ बाकी जो खाली जगहटा रहि गला दिस वैकेंट प्लेस ट्रीटेड एज होल्स एंड द टेंडेंसी ऑफ होल्स टू अट्रैक्ट और ट्रैप अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरबाई एटम्स and the holes behaves like a positive charge particle but it is not a real particle. Okay, understand? So amra already time to over gelani, बहुत टाइम हे gelani. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 रे पढिबा. सो आज हम क्लियर हेले कोन कांसेप्ट होल पर्यंत क्लियर हेले. सो सेमीकंडक्टर हम कोन कोन सब पढले 1 मिनिट रे जस्ट 1 to 2 मिनिट भीतर मु रिवाइज करूची. समस्ते केयरफुली याकू पढ़ो एंड नोट्स को भल से स्क्रीनशॉट मार दो. देख नोट्स भी निजे निजे बनै परिबा, को रेक्टिफाई नोट्स भी निजे बनै परिबो. जो तुम वंस कांसेप्ट क्लियर हो गला तुम नोट्स बनायार भी कोनोसी दिक्कत होबनी. बा तुम यदि नोट्स निजे क्रिएट करबा को स्टार्ट कलो देन यू कैन सक्सीड. जेतेबेले ओन नोट्स रहइबो निजे पाखरे टीचर को हेल्प पे तुम यदि निजे नोट्स तैयारी करि पाइलो दैट कैन हेल्प यू मच मोर बेटर देन टीचर, much more better than teacher. बुझेला? So semiconductor device lecture number 1 रे हमें clear है what is semiconductor and why semiconductor is important for us because it can control the flow of electrons or flow of current. So by due to this property of semiconductor we can construct so many types of electronic devices by using semiconductor. देन हम पढ़िले स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन जर्मानियम से माने कोवैलेंट बॉन्ड ए टाइप रो स्ट्रक्चर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे आकु डायमंड क्रिस्टल भी कहि परिबा. देन चार्ज कैरियर पढ़ले चार्ज कैरियर होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दिजन जाक रिस्पांसिबिलिटी अछंती. होल भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करिवारे हेल्प करूची सेमीकंडक्टर को, फ्री इलेक्ट्रॉन को भी हेल्प करूची इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करिवारे सेमीकंडक्टर को. ताले देन कांसेप्ट ऑफ होल्स भी क्लियर हेले concept of holes clear है जे concept of holes होची holes is just a vacant place treated whose tendency is to attract or trap another free electron from nearby atom but it is not a real particle and behaves like a positive charge particle. Okay, thank you and see you in the next lecture semiconductor devices lecture number 2. Thank you all of you.